हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंथैल्पी चेंज कंप्लीट किया था। इसमें अब तक हमने किया है इंटरनल एनर्जी चेंज एंड इंथैल्पी चेंज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये रिलेशनशिप और इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे। तो आज हम ले रहे हैं वाई दीज इंथैल्पी चेंजेस अकर्स इन दिस रिएक्शंस एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शंस। ओरिजिन ऑफ इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शंस। इंथैल्पी चेंज और एनर्जी रिलीज है या एब्जॉर्ब है। वाई सच एनर्जी चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। द रीजन इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स एंड एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सपोज कीजिए एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्रोड्यूस 2HCl। सो इन दिस रिएक्शन hydrogen bond dissociate, chlorine bond dissociate, and two new bonds between hydrogen and chlorine, new bond formation takes place. So due to difference in energy required to break old bonds and energy released during the formation of new bonds. Due to difference in energy required to break old bonds and energy released during the formation of new bond, enthalpy change occurs during reaction. रिएक्शंस में नए बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो और पुराने बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उन दोनों में डिफरेंस होने की वजह से रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज होता है। एंड दिस एंथैल्पी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ bond energy of product. Summation of bond energies of all the reactant minus summation of bond energy of all the products. तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ ethanol. Calculate the heat of combustion of ethanol using bond energies. उसमें आपको बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हैं। कौन कौन सी बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, जरा देखिए। ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एनर्जी. The double bond of energy of oxygen bond is 494 kilojoule per mole. Bond energy of carbon single bond, it is 347 kilojoule. Similarly, bond energy of carbon oxygen bond and 351 kilojoule per mole. Similarly, oxygen hydrogen bond is bond energy is 464 kilojoule
carbon hydrogen bond energy. Carbon hydrogen bond energy is 400, not 500, sorry, it is 414 kilojoule per mole. This is carbon hydrogen bond energy. Similarly, more energies are also given. Carbon double bond oxygen bond energy, carbon double bond oxygen, and oxygen hydrogen bond energy, that is already given. I have already written this one. So these are the energies given to you. Sorry, carbon oxygen double bond energy is 707 kilojoule per mole. Now these are the energies given to you, and you are to calculate the enthalpy of combustion of ethanol. Means ethanol C2H5OH when burned in presence of oxygen produce 2 CO2 and 3 water and energy is released delta H. ये हमें कैलकुलेट करनी है, and we will balance the reaction. First of all, 3O2. Now this is our reaction, and now we are to calculate the bond energy of reactions. Now इस reaction में पहले हमें क्या करना है, sum of bond energy of reactant minus product. Summation of bond energy of reactant minus product is our enthalpy of the reaction. ये हमें जो calculate करनी है enthalpy of reaction, that is delta H will be equal to summation of enthalpy of bond energy of reactant minus summation of bond energy of प्रोडक्ट. और अगर इसमें आप ध्यान से दें तो हमें कौन कौन से बॉन्ड डिसोसिएट करने हैं और कौन से नए बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. हमारा इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल OH H प्लस ऑक्सीजन 3 moles of oxygen. So 3 moles of oxygen is double bond O, 3 moles. I am writing it 3 times. And the product is 2 CO2, C double bond O, 2 moles of CO2 are produced and 3 moles of water are produced. 3 moles of water. So in this reaction, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी का सम करें तो उसमें हमारे आ जाएंगे 1. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं पहले जरा. 1 2 3 4 5 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो जो बॉन्ड एनर्जी होगी 5 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी प्लस this next carbon oxygen bond, that is 1. this is our carbon oxygen bond. सिर्फ एक ही है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी प्लस 1 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी. ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी 1 है. ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, दीज आर द बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड एनर्जी प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. तो 3 मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. so this is the sum of bond energy of reactant. तो ये हमारा होगा, वैल्यूज इनकी पुट करते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज 414 प्लस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी हमारी 351 है. 351 प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी 464 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी. तो ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड एनर्जी थी हमारी, दैट वाज 494. इट इज 494.
4. So this is the summation of bond energy of all the reactant. 5 carbon hydrogen bond, 1 carbon oxygen bond, 1 oxygen hydrogen bond and 3 oxygen oxygen double bond. तो इस तरह से हमारे बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स हमारी आ जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज द समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी summation of bond energy of reactant which will be equal to 4714 kilojoule. Similarly, now summation of bond energy of products, summation of bond energy of products में हमारे अगर हम bonds देखते हैं तो there are 1 2 3 4 C double bond O, so it will be 4 multiplied by bond energy of C double bond O bonds, carbon oxygen double bond plus 6 OH bonds. ये देख लीजिए आप, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 and 6 OH bonds will dissociate, so 6 multiplied by OH bonds, bond energy of OH bond, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 bond energy of OH bonds. So now total will be equal to, now bond energy of carbon double bond oxygen, अभी हमने यहाँ पर पीछे लिखी थी, carbon double bond oxygen is 707, it is 707 plus 6 multiplied by OH bond 494 है, अभी हमने सॉरी OH bond is 464, यहाँ हमने रिएक्टेंट्स में भी हमारा एक बॉन्ड था, ये 464, सॉरी 464. So total comes to be 5612 kilojoule, 5612 kilojoule. This is our energy released, क्योंकि यहाँ पर नए बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, सो इट विल बी नेगेटिव, वी विल यूज इट एज नेगेटिव साइंस. सो अगर आप नेगेटिव नहीं भी लेते हैं, आप सिंपल यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ले लीजिए, बॉन्ड एनर्जी से आपका लास्ट में एनर्जी ये लीजिए, हम पॉजिटिव ही लेकर चलें तो हमारा जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा एच, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है. तो इसमें रिएक्टेंट में हमारी जो बॉन्ड एनर्जी आई थी वो आई थी 4714 और माइनस प्रोडक्ट में जो बॉन्ड एनर्जी है हमारी 5612 किलोजूल. सो इट विल बी नेगेटिव, मीन्स एनर्जी रिलीज्ड 899 किलोजूल. सो जो डेल्टा एच की वैल्यू हमारी आई है वो हमारी माइनस 899 किलोजूल यहाँ आंसर आ जाता है. सो दिस इज योर आंसर, दैट इज 899 नेगेटिव किलोजूल. नेगेटिव साइंस मीन्स एनर्जी रिलीज्ड. यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो इसका मतलब जो है आपकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी. समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ बोन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज मोर देन द बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, एनर्जी फॉर्मेशन कम होगी, सो साइन नेगेटिव साइन आपका आ जाएगा. तो इस तरह से इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं. इसके बाद अब आप क्या जाते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, लेकिन उससे पहले कि हमारी डेफिनेशन है व्हाट डू यू मीन बाय इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज अमाउंट ऑफ हीट absorbed or evolved in a chemical reaction when number of moles of reactant
reactant as represented by chemical balanced chemical equation, as represented by balanced chemical equation are completely सॉरी आपका यहाँ पर completely consumed in reaction, completely consumed in reaction। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने मोल्स रिएक्टेंट के शो किए गए हैं उतने मोल्स जब कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड आवर इंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए रिएक्शन अभी हमने ऊपर ली C2H5OH प्लस 3O2 प्रोड्यूस 2CO2 प्लस 3 वाटर, ये मैंने रिएक्शन ली। तो इस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। तो जब 1 मोल इथेनॉल के और 3 मोल ऑक्सीजन के कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, उसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी द इंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। सो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिवोल्ड या इंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के उतने मोल्स एज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जितना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया गया है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, तब उस रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम इंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन कहते हैं। कोई भी रिएक्शन है व्हेन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन combines completely, then energy change is called enthalpy of this reaction, enthalpy of this reactions. So number of moles as represented by balanced chemical equation are completely consumed, then energy change is called enthalpy change of that reaction। फिर इसमें कहा जाता है आपका स्टैंडर्ड enthalpy change, standard enthalpy change। Standard enthalpy change for a reaction when all the participating substances, reactant and products are in their standard state। Enthalpy change when enthalpy change during a reaction, ऐसे लिख लेते हैं हम, enthalpy change during a reaction when all the reactant and products are in standard state, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है आपका 298 केल्विन टेम्परेचर, जो उनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, दैट इज मोस्ट stable state at 298 Kelvin temperature at a particular temperature and 1 bar pressure। तो अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, जो कि उनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है 298 केल्विन टेम्परेचर पर और 1 बार प्रेशर पे, तो उस स्टेट में अगर सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह से हमारी इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इंथैल्पी चेंज देयर में भी 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो हम पहले जानते ही हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज released। Exothermic reaction, a reaction in which energy is released, like nitrogen plus 3 hydrogen produce 2 ammonia, and delta H for this reaction is minus 92.4 kilojoule। Means delta H is negative। negative signs means energy released। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी।
इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ध्यान रखना ये N2 + 3H2 प्रोड्यूस 2 अमोनिया प्लस 92.4 किलो जूल एनर्जी। मतलब एनर्जी कैन बी शोन इन प्रोडक्ट्स और एनर्जी को बाद में एज ए डेल्टा एच के फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है। अगर उसको आप डेल्टा एच के फॉर्म में दिखाओगे तो वहाँ पर उसका नेगेटिव साइन दिखाना होगा अगर वो एनर्जी रिलीज है तो, पॉजिटिव साइन अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब है तो एक्सोथर्मिक में हमारी एनर्जी रिलीज होती है। और उसके बाद एंडोथर्मिक, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन in which energy is absorbed like N2 plus O2 plus 180 kilojoule produce 2NO। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स 180 किलोजूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके NO प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन produce 2NO and delta H is plus 180 kilojoule, plus 180 kilojoule means energy is absorbed। तो दोनों तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। नाउ टाइप्स ऑफ enthalpy change on the basis of reaction, enthalpy of reactions, different type of enthalpy changes, different types of enthalpy changes। तो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसको भी हम दो कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, enthalpy of phase transfers and enthalpy of reactions based on टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो पहले हम लेते हैं enthalpy of phase transfer। फेज ट्रांसफर मतलब जहां पर जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से या गैस से लिक्विड, या सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस। तो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं उसमें। तो इसमें आपकी जो सबसे पहले है वन बाय वन लेते हैं, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, सॉरी वेपोराइजेशन है तो वेपोराइजेशन हमारी थे लिक्विड का गैसेस में चेंज, व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू गैस, 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू गैस या चेंज इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, at its boiling point. This is called enthalpy of vaporization. Heat change when 1 mole of liquid change into vapors at its boiling point is called enthalpy of vaporization. For example, when water liquid change into water gas, जिसकी डेल्टा एच है वो आपकी इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी। और इसको हम लिखते भी इस तरह से हैं, इंथैल्पी वेपोराइजेशन एच, चेंज, इंथैल्पी चेंज वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन आपका सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है और जो इसकी वैल्यू है वो आपकी होगी लिक्विड टू गैस मीन्स 40 किलो जूल, 40 किलो जूल। पॉजिटिव होगी क्योंकि इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी एंड चेंज इनटू गैसेस। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इसकी बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी हमारी इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। इंथैल्पी ऑफ सेकंड है इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन मीन्स इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज व्हेन
1 मोल ऑफ, अब कंडेंसेशन होती है वेपर्स इनटू सॉलिड, 1 मोल ऑफ वेपर्स, 1 मोल ऑफ वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड at its condensation point, at its condensation point means like water vapors in gaseous form change into water liquid. तो डेल्टा ऑफ कंडेंसेशन होगी हमारी, डेल्टा एच कंडेंसेशन, वो इसमें आपकी हो जाएगी। अब वेपर से सॉलिड लिक्विड स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, साइन नेगेटिव होगा, -40 किलो जूल, 40.6 है ये अप्रोक्सीमेट, तो 40 किलो जूल इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन फॉर वाटर गैस चेंज इनटू लिक्विड। नेक्स्ट, इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग एंड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो थर्ड इज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा इसको, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सो हीट चेंज व्हेन, या हीट चेंज तो दूसरी तरह से इसकी डेफिनेशन दिखाते हैं जरा, हीट चेंज ड्यूरिंग, ऐसे भी आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at its melting point, solid change into liquid at its melting point, like ice, water, solid ice change into water liquid। जो डेल्टा एच है इसकी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वो हमारी रहेगी 6 किलो जूल प्लस रहेगी। और इसी तरह से हमारी नेक्स्ट आ जाती है इंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच, इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, डेल्टा फ्रीजिंग एच, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो वो आ जाएगी आपकी इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड into solid at its freezing point, फ्रीजिंग पॉइंट पर जब 1 मोल लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, उसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट इज योर डेल्टा फ्रीजिंग। फॉर एग्जांपल रिएक्शन की फॉर्म में लेते हैं, वाटर लिक्विड चेंज इनटू वाटर सॉलिड, so डेल्टा फ्रीजिंग विल बी इक्वल टू -6, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, तो एनर्जी रिलीज करके सॉलिड में कन्वर्ट होगा, -6 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह से अब लास्ट इसमें एक और है फेज ट्रांसफर की हमारी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, लास्ट किलो जूल, यस, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है? हाँ जी, इट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। तो इसमें आप डेफिनेशन में बोलेंगे हीट चेंज व्हेन या हीट चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ऐसे लिखिए, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 mole of solid directly into liquid at its, not at its, this time below its melting point, क्योंकि सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना तो मेल्ट नहीं होना चाहिए,
तो मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही उसको सब्लाइम किया जाता है, सब्लिमेशन उसका नहीं होना चाहिए। तो सब्लिमेशन नहीं होगा तो आपका आ जाएगा, सॉरी सब्लिमेशन होना है मेल्ट होने से पहले ही। तो सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वाटर गैस।